Okay, so we have to start with the module number 1, and the module number 1 is name is Introduction to Microeconomics. Okay, so as we have already discussed about the syllabus, and in that syllabus, the first chapter is about microeconomics. Okay, so under Introduction to Microeconomy, there are total 7 chapters. Total 7 chapter रहेंगे एक ही module में, module number 1 में. So the first module name here microeconomics. So this is first module name is Introduction to Microeconomic Data and Theory, and in that one the first chapter name is microeconomics. Okay, so what exactly we will going to study into the microeconomics? What are the measure? What is the meaning of microeconomics? Its scope and its importance. उसके बाद में second रहेगा circular flow of income. So this first chapter will be quite familiar to you because you people have already studied about the microeconomics. ये सबको पता रहेगा कि इसका meaning क्या है, scope क्या है, importance क्या है. थोड़ा recall करो और उसके हिसाब से फिर तुम लोग मुझे आंसर बताते जाओ. ठीक है, one by one I'll start explaining you also. See, now they have given here meaning of microeconomics. In your 12th standard, you have studied about the microeconomics as well as about the microeconomics also. दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई बता पाएगा मुझे? Even the online student, you can write it in the chat box. Microeconomics है MICRO and the other one is the MACRO. दोनों में क्या डिफरेंस? सिंपल, अगर मुझे सिंपल टर्म में बोलना है कि ये दोनों में डिफरेंसेस है तो क्या डिफरेंसेस है? What is micro and what is macro? Yes, Aditya. Yes, small. हाँ, small part. Aggregate. Yes, large part. Okay. So yes, very good. Here we have written here. Mahek ने लिखा है microeconomics cover small area, microeconomics cover large area. Yes, very good, Mahek. Yes, particular and the whole. Okay, very good. दिशाद ने भी लिखा हुआ है. So generally simple way में अगर बोलना है, so what do you mean by the microeconomics? So microeconomics basically studying the small part of an economy. So small part of an economy मतलब क्या रहेगा? We will talk about the income. तो वहां पे एक पार्ट रहेगा इंडिविजुअल इनकम एंड द अदर पार्ट विल बी नेशनल इनकम. तो इंडिविजुअल इनकम कहाँ पे आएगा? माइक्रो में या मैक्रो में? माइक्रो में आएगा. एंड व्हेन वी आर सेइंग अबाउट द नेशनल इनकम, सो दैट विल बी कमिंग इनटू योर माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, तो मतलब जब हम लोग किसी स्मॉल यूनिट्स के बारे में बात करते हैं, सो दैट विल बी द माइक्रो इकोनॉमिक्स. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्रीगेट बिहेवियर या फिर टोटल हम लोग जब कंसिडर करते हैं, सो दैट विल बी कमिंग इनटू योर माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. सी व्हाट मीनिंग दे हैव गिवन हियर. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर एंड द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल. ओके, मतलब टोटल इकोनॉमी के बारे में वो स्टडी करता है. लेकिन अगर आपको ये मीनिंग डिफिकल्ट लगता है एंड वॉट एवर मीनिंग यू नो इन योर 12th स्टैंडर्ड के जो टेक्स्ट बुक में जो तुम लोगों ने पढ़ा हुआ था, या फिर सिंपल वे में तुम लोग बोल सकते हो कि माइक्रो इकोनॉमी इज अ स्टडी ऑफ aggregate behavior or aggregate part of an economy. वो भी चलेगा, कोई wrong नहीं है. Okay, then it focuses on the aggregate changes in the economy such as unemployment, growth rate, gross domestic product and the inflation. So when we say about the microeconomics, so economy के जो factors है, जो aggregate factor है, तो जो पूरे economy को affect करते हैं, हम लोग उनके बारे में study करते हैं. देखो, इकोनॉमी में कोई एक इंडिविजुअल यूनिट अफेक्ट नहीं करने वाला. पूरा इकोनॉमी अगर अफेक्ट होता है, तो अगर पूरे इकोनॉमी में वो सिचुएशन आ जाता है, देन द इकोनॉमी विल गोइंग टू गेट अफेक्टेड. सो वेदर इट इज पॉजिटिवली और द नेगेटिवली. ओके, तो इसके लिए उन्होंने क्या, जैसे कि प्राइस के बारे में, अगर किसी एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो इतना अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन सारे कमोडिटीज का अगर प्राइस बढ़ेगा तो हम लोग वहां पे क्या कहते हैं कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ गया करके. ओके, so when there is the aggregate level aggregate price level is increasing, so that factor will going to get affected. So उसको कहा जाता है इन्फ्लेशन. उसके बाद में इनकम. इनकम कैसे अफेक्ट होता है? देखो सुनो, जैसे कि गवर्नमेंट के जॉब के हिसाब से हम लोग बात करेंगे. गवर्नमेंट में क्या रहता है कि एक पर्टिकुलर 5 इयर्स के बाद में पे कमीशन निकलता है. पता है ना आप लोगों को? अभी हम लोग आई थिंक 7th पे कमीशन में है. एम आई राइट और नॉट? जो नेक्स्ट पे कमीशन आएगा वो क्या रहेगा? 8th पे कमीशन रहेगा. तो जैसे पे कमीशन निकलता है तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा सैलरीज के ऊपर पैसा देना पड़ता है, तो वो उनके लिए एक्सपेंडिचर हो जाता है. सो दिस वे इफ द इनकम इज इंक्रीजिंग, मतलब अगर गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं चलो अभी इनकम बढ़ाना चाहिए, तो ऑब्वियसली वो किसी एक सेक्टर का इनकम नहीं बढ़ाएंगे. जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी इंडस्ट्री आते हैं, सबका इनकम उनको बढ़ाना पड़ता है. जनरली अभी आप लोग मुझे बताओ कि आपके घर में भी पता रहेगा कोई ना कोई तो गवर्नमेंट जॉब पे रहेगा ही रहेगा,
Am I right? मुझे पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का सैलरी सबसे पहले बढ़ता है या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का? जब पे कमीशन आता है, जो पे कमीशन निकलता है, तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को पे कमीशन चालू हो जाता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट को? हाउ मेनी ऑफ यू सेइंग स्टेट गवर्नमेंट? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू सेइंग सेंट्रल गवर्नमेंट? हाँ, आई थिंक सेंट्रल नहीं, आई थिंक नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पहले सैलरी आता है, ठीक है। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को फैसिलिटी मिल गया तो स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा सा उधर के एम्प्लॉयज को थोड़ा मोर्चा वोर्चा निकालना पड़ता है, उसके बाद में उनको पे कमीशन स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको और एक बात बता के दो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ना, उनको इवन रिटायरमेंट के बाद वाला जो पैसा रहता है, उनकी इवन जो सैलरी रहती है, देखो स्टेट गवर्नमेंट में कोई एक एज अ क्लर्क काम कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी वो बंदा क्लर्क करके ही काम करता रहेगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज का क्लर्क का सैलरी ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर विद स्टेट गवर्नमेंट। इसके लिए बहुत अप्रिशिएट किया जाता है अगर हम लोग को जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट में लग जाता है। Are you getting me? So what is the meaning of telling this thing कि अगर एक सेक्टर वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट सेक्टर ऑब्वियसली, ठीक है, अगर वो अफेक्ट हो गए तो बाकी सेक्टर पे डिमांड करेंगे, सो अल्टीमेटली क्या होगा, इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर आ जाएगा। तो इसके लिए कहा जाता है कि एग्रीगेट बिहेवियर जो रहता है, जो एग्रीगेट टोटल अगर हम चीजों को कंसिडर करेंगे, तो दिस इज व्हाट द पॉइंट वेयर द इकोनॉमी विल गोइंग टू गेट अफेक्टेड। इसके लिए हमेशा माइक्रो इकोनॉमिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और इसी सब्जेक्ट के थ्रू यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि इकोनॉमी कैसे काम करता है। ओके, देन नेक्स्ट उन्होंने दिया है यहाँ पे, हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, यू नो व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज ग्रोथ रेट, यू नो दैट ऑल। ओके, देन macroeconomic analyzes all aggregate indicator and the macroeconomic factor that influence the economy. Government and the corporation use macroeconomic model to help in formulating of economic policies and the strategy. देखो, जो भी गवर्नमेंट में नया पॉलिसी लेके आते हैं तो वो सारा एग्रीगेट इकोनॉमिक बिहेवियर के बेस के ऊपर ही लिया जाता है। जैसे कि अगर पॉलिसीज में मुझे अगर बात करनी है, चलो मैं एजुकेशन का एक एग्जांपल ले लेती हूँ। एजुकेशन में आप लोगों ने नोट किया रहेगा कि अभी तुम लोगों का जो फी था वो कम किया, एम आई राइट और नॉट, है ना? वो फी क्यों कम किया गया? बिकॉज सारी जगह पे ऑनलाइन चालू है। ओके, जैसे तुम लोग स्टार्टिंग में पहले आर्ग्यू कर रहे थे, आई डोंट नो लाइक यू पीपल वेयर देयर और नॉट, लेकिन सबका आर्गुमेंट था कि कॉलेज का इलेक्ट्रिसिटी बच रहा है, देन अगेन कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग यूज नहीं कर रहे, वी आर नॉट इवन यूजिंग द कंप्यूटर लैब, तो हम लोगों से वो पैसा क्यों लिया जा रहा है, इजंट इट? लेकिन फिर भी तो ये सब कैसे डिसीजन वहां पे पॉसिबल हुआ कि ये साल में पैसा कम करे करके? बिकॉज वहां पे यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई नहीं डिक्लेयर किया, वहां पे बहुत सारा उन लोगों ने एप्लीकेशन किया रहेगा, देन ओनली इट इज पॉसिबल। अगर कोई एक वहां पे ऐसा एप्लीकेशन लिखा तो पॉसिबल होता है कि चेंजेस करना नहीं होता। तो इसके लिए बोलते हैं ना, यूनिटी, हमेशा यूनिटी होनी चाहिए। अगर तुम्हें कोई ड्रास्टिक चेंज लेके आना है तो तुम्हारे पास वो यूनिटी होनी चाहिए, देन ओनली इट कैन बी पॉसिबल। कोई एक ही बोलता रहेगा, बाकी लोगों को उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, ये मेरे साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। ओके, लेकिन व्हेन वी आर सेइंग अबाउट द फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो कोई एक ही सेक्टर डिमांड कर रहा है तो उसका नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर सारे इकोनॉमी मिलके वहां पे डिमांड करती है, देन इट विल गो गेट अफेक्टेड। इवन वी कैन से अबाउट दिस जो रिजर्व कैटेगरी का रहता है कोटा, इजंट इट? तो उसके लिए भी क्या रहता है, रिजर्व कैटेगरी के कोटा के लिए कि ओबीसी वाले, ओपन कैटेगरी का अभी चालू है ना कि ओपन कैटेगरी वालों को भी मिलना चाहिए कंसेशन करके। यहाँ पे क्या होता है कि ओपन कैटेगरी वालों ने और वहां पे यूनिटी दिखाने की जरूरत है कि जो भी उनके लीडर्स को उन्होंने वहां पे खड़ा किया एज अ लीडर, तो वो लीडर से भी वहां पे उतना उसको इनिशिएटिव लेना चाहिए, और जितना मैक्सिमम लोग हैं, जितना ज्यादा क्राउड रहेगा, उतना हम लोग इफेक्टिवली ला सकते हैं चेंजेस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेलिंग हियर कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी इकोनॉमी में पॉलिसी बनाया जाता है, वो सारा पॉलिसी एग्रीगेट बिहेवियर के हिसाब से ही होता है। भले वो पॉलिसी एजुकेशनल रहने दो या फिर पॉलिसी हेल्थ से रिलेटेड रहने दो, जो भी पॉलिसी बनेगा दैट विल बी ऑल डिपेंड अपॉन योर माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। तो इसके लिए जो भी इकोनॉमिक्स रहने दो या साइंटिस्ट रहने दो, वो सारे लोग माइक्रो कॉन्सेप्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। आई गेटिंग मी? समझा माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या है? मतलब आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर हमें इकोनॉमी में कुछ भी चेंजेस लेके आना है या फिर हमें कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करना है, तो उसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द मोस्ट यूजफुल टूल वी कैन से। ओके, नेक्स्ट ईयर, यस, यहाँ पे कोसर ने लिखा था स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, कोसर का अभी आई थिंक आंसर मिल गया रहेगा। ओके, सी द नेक्स्ट वन ईयर, माइक्रो इकोनॉमिक डेफिनेशन
जैसे कि मैंने तुम लोगों को अभी भी कहा कि डेफिनेशन मीनिंग अगर आप लोगों को सेकेंड ईयर बीएमएस का डिफिकल्ट लग रहा है, दे नो नीड टू वरी। आप लोगों को अगर 12th स्टैंडर्ड का डेफिनेशन मीनिंग लिखना है तो वो चलेगा। हाँ, कोई ऐसा नहीं कि अभी तुम लोग एसवाई में आ गए हो 12वीं तक क्यों लिखा, मीनिंग तो सेम है, कॉन्सेप्ट तो सेम है, चल जाएगा। ओके, so still I'm reading here. According to Professor Kenneth E. Boulding, macroeconomics deals not with the individual quantity as such, but with the aggregate of these quantities, not with the individual income, but with the national income, and not with the individual price, but with the price level, not with the individual output, but with the national output. Easy है, कर पाओगे ये वाला भी। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जेवन हैंसन, microeconomics is that branch of economics which considers the relationship between large aggregates such as volume of employment, total amount of saving, investment, national income, etc. I think first वाला भले ही कैनिथ बोल्डिंग का थोड़ा बड़ा लग रहा है, but it is quite easy to buy, isn't it? तो वो वाला हम लोग लेते हैं, वो वाला कंसिडर करते हैं एज एन इम्पोर्टेंट वन। नाउ विल स्टार्ट विद द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। अभी स्कोप का मीनिंग क्या होता है? स्कोप, किसी भी चीज का स्कोप मतलब क्या रहता है कि किन किन चीजों को वो कवर करता है। ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्कोप हियर। स्कोप मतलब यहाँ पे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या चीजों को कवर करेगा उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला है स्टडी ऑफ एग्रीगेट। स्टडी ऑफ एग्रीगेट मतलब क्या है यहाँ पे? जैसे कि इनकम है, तो इनकम के लिए क्या एग्रीगेट रहेगा बताओ मुझे? पूरा इनकम। तो मतलब पूरा इनकम के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग? नेशनल इनकम। ओके, अगर मैं यहाँ पे आउटपुट के बारे में बात करूंगी, तो मुझे अगर पूरे नेशनल लेवल पे बात करनी है आउटपुट के बारे में, तो उसको मैं क्या कहूंगी? नेशनल प्रोडक्ट। आर गेटिंग मी? अगर मुझे किसी कमोडिटी, मुझे प्राइजेस के बारे में बात करनी है, देन आई विल से एग्रीगेट प्राइस। Are you getting me? So इसका मीनिंग क्या होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है? They will going to study all the aggregate parts of an economy. बस यही आप लोगों को वहाँ पे लिखना है। तो वेदर इट इज अ प्लस पॉइंट और द नेगेटिव पॉइंट, भले वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रहने दो, पॉवर्टी रहने दो, या फिर अगर कोई नेचुरल कैलामिटीज आ जाते हैं तो उसके वजह से पूरा इकोनॉमी कैसे लॉस में है, उसके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं, सो दैट ऑल सेक्शन विल बी कमिंग इनटू योर माइक्रो इकोनॉमिक्स ओनली। इन शॉर्ट क्या बोलना है कि स्टडी ऑफ एग्रीगेट विल बी कमिंग अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। क्लियर? सेकेंड है नेशनल इनकम के बारे में। ओके, सो माइक्रो इकोनॉमिक टेल्स अबाउट डिफरेंट थियरीज ऑफ नेशनल इनकम, इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम एंड की डिटर्मिनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। अच्छा, नेशनल इनकम का मेजरमेंट तुम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहेगा ना, जीडीपी, जीएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, पढ़ा है ना? अच्छा, तो ये क्या होता है? विद दिस कॉन्सेप्ट ओनली वी आर एबल टू गिव द एग्जैक्ट नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी। तो मैं आपको एक सिंपल बताती हूँ, जीडीपी करके ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जीडीपी एंड जीएनपी। तो जीडीपी में क्या होता है कि जो पूरा इकोनॉमी है, इकोनॉमी में जो भी टोटल प्रोडक्शन बनता है, सो टोटल प्रोडक्शन कैन बी एनीथिंग लाइक अगर कंप्यूटर मैंने वहां पे बनाया है, ओके, तो कंप्यूटर का कितना प्रोडक्शन ये साल में हुआ, ये साल मतलब कौन सा साल लिया जाता है? फाइनेंशियल ईयर लिया जाता है। अगर हम लोग को जीडीपी कैलकुलेट करना है, और जनरली ये बेसिकली 1 ईयर के लिए होता है, लेकिन ये जो 1 ईयर रहता है वो एकेडमिक ईयर नहीं रहते, जो तुम लोगों का एकेडमिक ईयर होता है जून से स्टार्ट होगा मई में खत्म होगा, वैसा नहीं। इट विल बी गोइंग टू कंसिडर ओनली द फाइनेंशियल ईयर। तो ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितना कंप्यूटर का प्रोडक्शन हुआ, मैं कंप्यूटर के हिसाब से बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन होता है, बट फॉर एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू दिस थिंग। कंप्यूटर का कितना प्रोडक्शन हुआ? ओके, चलो वहां पे 100 क्वांटिटी बना, एक कंप्यूटर सस्ते में बता रही हूँ 20,000 का रहेगा सपोज, ठीक है। तो ये पूरे कंप्यूटर का वैल्यू, एक कंप्यूटर का वैल्यू कितना है, तो उसके हिसाब से जो 100 कंप्यूटर बने तो उनका टोटल वैल्यू कितना हुआ, तो फिर कंट्री ने कितना वहां पे प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है और उनका वैल्यू क्या है। वेन वी आर कैलकुलेटिंग ऑल दिस प्रोडक्ट वैल्यू, तो उसको कहा जाता है जीडीपी। अभी आप बोलेंगे मैम प्रोडक्शन करके रखेंगे, लेकिन अगर वो बेचेगा ही नहीं तो क्या पे इनकम आया? वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू बराबर है, तो उसके हिसाब से भी अलग रहता है कि कंट्री ने जो प्रोडक्शन किया, लेकिन वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में उसको कितना इनकम मिला। तो 3-4 वे से होता है, वो आपको शायद आगे रहेगा कि जब हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, तो वो हम लोग प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करेंगे कि प्रोडक्शन का वैल्यू कितना है, हम लोग उसको इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करेंगे कि इनकम कितना आया वो साल में, या फिर हम लोग उसको एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितना एक्सपेंडिचर हुआ, उसके हिसाब से भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके,
सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो वो सब वेज, वो क्या मेथड रहता है, क्या मेजरमेंट रहता है, जब हम लोग नेशनल इनकम के बारे में स्टडी करते हैं, so that will be coming into your microeconomics. Is that clear? Now the next one here, inflation. चलो बोलो मुझे inflation मतलब क्या होता है? Can anyone tell me what do you mean by the inflation? कंट्री में inflation है मतलब क्या है? वर्ड सुना है तुम लोगों ने कभी inflation? सुना तो रहेगा, ये बहुत कॉमन वर्ड है। क्या क्या? Our country's growth rate is down. Okay, so here I got the answer. Inflation मतलब कंट्री का ग्रोथ है वो डाउन होता है। यहाँ पे मुझे किसने भेजा है ये? हाँ, महक ने भेजा है महंगाई। यस, इट इज एक्चुअली महंगाई। ठीक है, सो इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या होता है कि प्राइसेस जो रहते हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ते जाते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। अभी आप लोग एक एग्जांपल के फॉर्म में कि इन्फ्लेशन मतलब ऐसे कभी कंसिडर किया जाए कि हाँ अभी वर्स्ट सिचुएशन आ चुका है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की वजह से, वो कभी कंसिडर किया जाता है कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़े, जैसे फॉर एग्जांपल ऑनियन का प्राइस हम लोग लेते हैं। ओके, तो ऑनियन का प्राइस बढ़ गया और वो ऑनियन पहले 20 रुपए किलो अवेलेबल था, उसके बाद में वो डायरेक्टली 60 रुपीज केजी होता है ना। जनरली ऑनियन का अगर आप लोगों ने देखा रहेगा कि हर एक साल में ऑनियन की प्राइसेस बढ़ते ही है, लेकिन वो पूरा साल भर वही प्राइस रहता है क्या? नहीं, पहले 1-2 महीना वो बढ़ता हुआ दिखेगा, बाद में कम हो जाएगा। तो वो सिचुएशन को है ना वो सिचुएशन नहीं कहा जाता है। आई गेटिंग मी? प्राइजेस बढ़ गए वहां पे, लेकिन वो फिर से अपने जो उसका एक्चुअल रेट था वहां पे आ गए तो वो चलेगा। लेकिन अगर प्राइजेस बढ़ गए हैं और वो कंटिन्यूसली बढ़े ही, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, फिर भी वो कम नहीं हो रहे, सो दिस इज व्हाट द वर्स्ट सिचुएशन फॉर द इकोनॉमी। यू गेटिंग मी? किसी ने कुछ लिखा है? हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है? वॉइस डिस्टर्बेंस। यहाँ पे कोई नहीं बात कर रहा है बेटा, आई थिंक फैन की वजह से। ये वाला फैन बंद कर दो। कोई तो अनम्यूट है। कौन अनम्यूट है इधर? हाँ, दिलशाद इज अनम्यूटेड। दिलशाद, अभी ठीक है? अभी ठीक है? यस स्टूडेंट, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। अभी आवाज बराबर है? हाँ, तो हम लोग है ना दिलशाद को नेक्स्ट टाइम पनिशमेंट देंगे जब मिलेंगे तभी। ठीक है? ओके ओके, चलो हम लोग क्या बात कर रहे थे? हाँ देखो, आयशा ने कहा कि बराबर है, दिलशाद को पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। ओके, चलेगा। एक मिनट में पेज टर्न करती हूँ। इस ओके दिलशाद, अभी डर मत जाना, सॉरी लिखने की जरूरत नहीं, कोई मारने नहीं वाला है तुझे, लेकिन भी मैंने ऐसे ही बोला था। ओके, सी हियर, तो इन्फ्लेशन मतलब क्या रहता है? अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ा है और वो कम ही नहीं हो रहा है, देन वी हैव टू वरी। ओके, तभी हम लोग कहते हैं कि इकोनॉमी इज इन द वर्स्ट सिचुएशन। नाउ द नेक्स्ट वन हियर, एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो एम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टडी किया जाता है। एम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है। तो वहां पे उन्होंने लिखते वक्त लिखा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स विल गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्लासिकल थियरी, केंशियन थियरी एंड द मॉडर्न थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में कि प्रॉब्लम क्या होता है यहाँ पे कि अनएम्प्लॉयमेंट जब रहता है तभी प्रॉब्लम होता है। ओके, सो अनएम्प्लॉयमेंट के रीजन क्या है, कौन से टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं, तो वो सब जब हम स्टडी करते हैं, दैट विल बी कमिंग इनटू योर माइक्रो इकोनॉमिक्स थियरी। ओके, जैसे कि यू पीपल आर प्रेजेंटली 18, आप लोगों ने 18 ईयर्स क्रॉस कर चुका है, सो नाउ यू आर एलिजिबल टू गेट द एम्प्लॉयमेंट। ओके, बट आर यू एम्प्लॉयड? नो, सो अगेन यू आर कमिंग इनटू द अनएम्प्लॉयमेंट। दो यू आर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन, बट स्टिल आपका जो वहां पे जो आपका अगर रिकॉर्ड वहां पे जाता है, सो दैट विल गोइंग टू शो दैट इट्स इन द अनएम्प्लॉयमेंट लेवल। और सबसे बुरा हाल तो कभी रहता है कि जब लोगों का टीवाई हो जाता है, टीवाई के बाद में ऑलमोस्ट हायर एजुकेशन कोई लोग हायर एजुकेशन लेते, कोई नहीं लेते हैं, लेकिन भले वो लोग हायर एजुकेशन लेते हैं फिर भी उनको अनएम्प्लॉयमेंट में ही कंसिडर किया जाता है। ओके, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है, कौन से टाइप्स का अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, क्या थियरी दे, इकोनॉमिक्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू उसको सोल्यूशन लाने के लिए वगैरह, दैट ऑल वी विल गोइंग टू स्टडी इनटू द माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट वन यार, ग्रोथ रेट। या दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रोथ रेट मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी, जैसे तुम लोग बोलते हैं ना कि ये बार तो जीडीपी अपना मतलब बहुत ज्यादा अच्छा रहा करके, और जैसे जब ये कोविड पेंडेमिक चालू था उस टाइम पे आई थिंक लास्ट ईयर में ऑलमोस्ट इंडिया का जीडीपी वॉज -22, वहां तक आ गया था, ऑलमोस्ट नेगेटिव में आ गया था। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि
कोई भी इकोनॉमी माइनस में आ जाए, जीडीपी मतलब ग्रोथ रेट मतलब क्या होता है कि कंट्री में क्या चेंजेस हो रहे हैं, कंट्री का इनकम बढ़ रहा है या कम हो रहा है करके, दिस इज व्हाट वी आर सेइंग द ग्रोथ रेट, ठीक है। लेकिन अगर ग्रोथ रेट जब नेगेटिव साइन में आता है तो उसका मीनिंग क्या होता है कि पहले जो इकोनॉमी जितना इनकम अर्न कर रहा था, अभी वो बहुत उससे कम इनकम अर्न कर रहा है। देखो पॉपुलेशन जो है वो बढ़ता ही जाएगा, लोगों का डिमांड जो है वो भी हमेशा बढ़ता रहता है, ठीक है। लेकिन अगर उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहां पे इनकम जनरेट नहीं कर पाए तो वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। आर यू गेटिंग मी? सो इसके लिए क्या होता है कि ग्रोथ रेट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा, किसी भी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट जो रहेगा वो हमेशा बढ़ता हुआ दिखना चाहिए। अभी जैसे जनरली इंडियन इकोनॉमी का क्या रहता है, इंडियन इकोनॉमी इज ऑलवेज कमिंग इन बिटवीन 4 to 6% का ग्रोथ रेट रहता है इंडियन इकोनॉमी का, कि जैसे अगर ये साल उनका 6% रहा, ओके, तो ये 6% मतलब क्या होता है, ये कैसे ग्रोथ रेट को कैलकुलेट किया जाता है। तो जो उनका पहले का पिछले साल का जो इनकम रहेगा इंडियन इकोनॉमी का, तो वो इनकम से अभी कितना परसेंटेज ज्यादा बढ़ा, तभी उसको उस वे से वो परसेंटेज को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये साल में 6% ज्यादा इनकम आया रहेगा इंडियन इकोनॉमी के पास, नेक्स्ट ईयर में वो 4% रहेगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि इंडियन इकोनॉमी अभी लॉस में है क्या? डू वी गोइंग टू से दैट द इकोनॉमी इज इन द लॉस? नहीं, हम लोग लॉस में नहीं कहेंगे, बस ये कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी ने पिछले साल से इस बार थोड़ा कम इनकम अर्न किया, दे आर स्टिल इन द प्रॉफिट, लेकिन जो ग्रोथ है जो 6% का था वो अभी 4% हुआ, तो वहां पे हम लोग कम हो चुके हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दैट ओनली, मतलब ग्रोथ रेट के हिसाब से हम लोगों को पॉलिसी डिसाइड कर, मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी डिसाइड करेगा कि कौन से सेक्टर में पिछले साल में कितना इनकम जनरेट किया था और ये साल में वो सेक्टर से कितना इनकम अर्न हुआ। तो वहां से उनको आइडिया आ जाएगा कि यार ये सेक्टर में तो लास्ट ईयर ज्यादा अच्छा इनकम देता है, ये साल उन्होंने कम इनकम दिया, मतलब ये वाला जो सेक्टर है ये शायद कुछ प्रॉब्लमेटिक है या फिर यहाँ पे कुछ हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाएगा। आर यू गेटिंग मी? सो ग्रोथ रेट कैसे बढ़ाया जाता है, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन हियर, कंजम्पशन एंड द सेविंग। ओके, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में यू विल स्टडी लॉट अबाउट व्हाट आर द थियरीज ऑफ कंजम्पशन एंड व्हाट आर द थियरीज ऑफ सेविंग, कि लोगों का कंजम्पशन पैटर्न कैसे रहेगा, लोगों का सेविंग बिहेवियर कैसे रहेगा। आपको इवन ये भी बताती हूँ कि हमारा जो कंजम्पशन एंड सेविंग है वो भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है? अगर उनको लगता है कि पब्लिक ने अभी ज्यादा कंजम्पशन करना चाहिए, गवर्नमेंट क्या करेगा बताओ मुझे? अगर गवर्नमेंट को लगता है कि लोगों ने कंजम्पशन ज्यादा करना चाहिए, तो आप लोग क्या कहते हैं गवर्नमेंट क्या कर सकता है तुम्हारे अकॉर्डिंग? एडवर्टाइजमेंट नहीं, प्राइस कम कर देगा। हाँ, आइदर दे विल गोइंग टू रिड्यूस द प्राइस, लेकिन प्राइस कम करेगा तो उनको लॉस रहेगा, ओके। जो प्रोड्यूसर रहेंगे उनको लॉस रहेगा। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है, प्राइस डिक्रीज लिया है एंड इनकम इंक्रीज, यस, इनकम इंक्रीज करेगा, वो लोगों का सैलरी बढ़ा देगा। लोगों का सैलरी बढ़ गया मतलब उनके हाथ में पैसा आ गया, हाथ में पैसा आ गया मतलब वो लोग के पास अभी अफोर्डेबिलिटी है खर्चा करने के लिए। आई गेटिंग मी? मतलब जो हम लोग कंजम्पशन एंड सेविंग करते हैं ना वो भी अपना कंट्रोल में रहता है गवर्नमेंट के अंदर। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं चलो अभी सेविंग करना चाहिए लोगों ने, तो क्या करेगा बताओ मुझे? गवर्नमेंट को लग रहा है कि तुम लोगों ने सेविंग करना चाहिए, तो तुम्हें वो कैसे मोटिवेट करेगा सेविंग करने के लिए, बताओ? इधर कुछ आंसर आया ऑनलाइन पे? सोचो ना तुम लोग कब सेविंग करोगे? पैसा आएगा तो ऑब्वियसली सेविंग करोगे, लेकिन फिर भी पैसा भी है तो लेकिन सेविंग तुम लोग का कब बढ़ेगा? हाँ, जब उसके थ्रू तुम्हें ज्यादा पैसा मिलेंगे, बराबर है। तो सेविंग के थ्रू कब ज्यादा पैसे मिलेंगे? जब तुम्हारा इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहेगा, इजंट इट? तो क्या करेगा गवर्नमेंट यहाँ पे, तुम लोगों ने सेविंग करना चाहिए करके रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के रखेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा तो ऑटोमेटिकली तुम लोग मोटिवेट हो गए कि नहीं अभी खर्चा नहीं करेंगे, मैं यही पैसा अगर डिपॉजिट करूंगा तो मुझे ज्यादा पैसा मिलने वाला है, isn't it? So this way even it will going to control. अच्छा, इंट्रोड्यूसिंग न्यू सब्सिडीज, नहीं सब्सिडी से सेविंग नहीं होगा। सब्सिडी अगर रहेगा तो हम लोग ज्यादा खर्चा करेंगे, बिकॉज हमें कम खर्चे में बहुत सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी, ओके। हाँ, सेविंग अकाउंट ओपन करना बराबर है, लेकिन सेविंग अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करके रखना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। तो इसके लिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे देन ओनली दे विल गोइंग टू हैव लाइक the people will going to open the saving account and they will going to keep the deposit in it, okay. Now the next one here, role of money, yes,
सी मनी का रोल, जैसे कि देखो माइक्रो एक्सप्लेन द रोल ऑफ मनी एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन द नेशनल इकोनॉमी. Micro explain different concepts associated with the money, that is investment, inflation, saving, consumption. Microeconomic also explain price mechanism in the national economy. See, जो भी मनी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट रहेगा इकोनॉमी में, वट एवर डिसीजन वी नीड टू टेक रिलेटेड टू मनी, तो वो पूरा डिसीजन, वो पूरा कंट्रोल किसके पास में रहेगा? आरबीआई के पास में. आरबीआई जो भी गाइडलाइंस करेगा वो सारा गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन कमर्शियल बैंक को फॉलो करना पड़ेगा. और हमारा अकाउंट जनरली कहाँ पे रहता है? कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक में ही रहता है. ओके, तो यहाँ पे मनी से रिलेटेड जो भी डिसीजन रहेगा दैट विल बी टेकन बाय द आरबीआई. लेकिन आरबीआई भी ये डिसीजन किस बेस के ऊपर लेगा कि इकोनॉमी में क्या सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन हियर, प्राइस मैकेनिज्म. क्या सुनना है बेटा आपको? प्राइस मतलब प्राइसेस कैसे डिसाइड होते हैं, या फिर इन्फ्लेशन के बारे में आप बोल रहे हो? यस, हु इज दैट? महक, इधर ब्लर दिख रहा है एक्चुअली. यस, अच्छा, प्राइस मैकेनिज्म मतलब क्या, व्हाट इज दैट मीन? अच्छा, प्राइस मैकेनिज्म मतलब प्राइस कैसे डिसाइड किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग, दैट इज व्हाट यू वांट टू सी. यस, कि प्राइस कैसे बनाए जाते हैं. अच्छा, प्राइस कैसे डिसाइड किया जाए? हाँ बोलो बेटा, थोड़ा जूम करो उसको. 1 मिनट स्टूडेंट बताते हैं. अभी बोल. हाँ, देखो यहाँ पे महक ने पूछा है कि प्राइस कैसे डिसाइड किए जाते हैं. सिर्फ प्राइस के लिए जो सबसे बेसिक फैक्टर रहता है वो रहता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि मुझे वो कमोडिटी बना, एज ए प्रोड्यूसर मुझे वो पर्टिकुलर कमोडिटी बनाने के लिए कितना खर्चा हुआ, वो रहता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में और क्या चीज रहती है कि गवर्नमेंट ने कितना टैक्स लगाया, वो टैक्स पेमेंट करना भी मेरे लिए खर्चा हो गया. ओके, तो अभी दिट विल बी डिपेंड अपॉन द प्रोड्यूसर कि उसको जो एमआरपी वो लगाएगा, तो एमआरपी में वो अपना प्रॉफिट रेशियो भी डिसाइड करके डालेगा. अगर मुझे लगता है कि मेरे कमोडिटी के ऊपर एक कमोडिटी बनाने के लिए टोटल खर्चा पूरा गवर्नमेंट का टैक्स वगैरह पूरा देके 10 रुपया हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, मुझे 10 रुपया खर्चा किया, मुझे 10 रुपया फिर से और ज्यादा मिलना चाहिए, तो वहां पे मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ? 100% प्रॉफिट में मांग रही हूँ. 10%, 10 रुपीज का खर्चा हुआ और मैं उसके ऊपर और 10 रुपीज डाल रही हूँ, मतलब 20 रुपीज का मैं प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ. तो वहां पे जो ज्यादा इफेक्टिव रहता है वो तुम्हारा प्रॉफिट कितना तुम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो, और दूसरा रहता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होता है वो. अभी कभी कभार क्या होता है कि गवर्नमेंट अगर टैक्स रेट कम करके रखेगा, तो अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं कि चलो टैक्स रेट कम किया मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया करके जो प्राइसेस रहेंगे वो भी कम हो जाएगी. यस महक, दिस इज व्हाट यू वांट टू से? यस, ओके. और आगे और आप लोग सीखो गया कि प्राइस थ्योरी में क्या होता है करके, वो आगे आपको अलग अलग चैप्टर्स में रहेगी. सी इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. देखो देखिए कितने पॉइंट्स है, तभी आगे बढ़ूंगी. अच्छा, टोटल 10 पॉइंट्स आर देयर. See, importance of macroeconomic, मैंने while explaining the scope of economics only, scope of macroeconomics, I have explained you what are the importance of macroeconomics है, कि इकोनॉमी कैसे फंक्शन कर रहा है, मतलब वो व्हाट वी कैन से कि प्रॉफिट में है, लॉस में है, हमें किसी सेक्टर पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है या नहीं, दैट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक. इकोनॉमिक पॉलिसी डिसाइड किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक. इकोनॉमिक का सिचुएशन क्या है उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक पॉलिसी डिसाइड किए जाएगी. अभी आप लोग मुझे ये बताओ कि प्रेजेंटली जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है किसी भी इकोनॉमिक में, इट इज ऑल अबाउट द कोविड. तो आप लोग एक खुद को एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एक पोजीशन पे रखो और मुझे बताओ कि आपको इकोनॉमिक का सिचुएशन इंप्रूव करना है, और आपको बहुत सारे सेक्टर दिए गए हैं. एजुकेशन सेक्टर दिया है, हेल्थ सेक्टर दिया है, देन अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ है. तो मुझे आप लोग बताओ कि आप कौन से सेक्टर में ज्यादा पैसा खर्च करोगे. सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक है, कोविड का सिचुएशन चालू है, और आपको मैंने 3 सेक्टर बताए. कौन से? एजुकेशन, हेल्थ एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर. मुझे बताओ कि कौन से सेक्टर पे आप लोग खर्चा ज्यादा करोगे. हेल्थ के ऊपर ज्यादा खर्चा करोगे. क्यों? बिकॉज पता है कि इकोनॉमी में प्रॉब्लम ये है तो मुझे उसका सोल्यूशन लेके आना है. ओके,
सो वेन एवर एनी ऑफ द पॉलिसी इज बीइंग फ्रेमिंग, तो वो पॉलिसी फ्रेम करने के टाइम पे इकोनॉमिकल सिचुएशन क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज को फ्रेम किया जाता है. ओके यस, मेनी ऑफ यू हैव रिटन हियर हेल्थ करके, वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट वन हियर, अंडरस्टैंडिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स. सी, दो वी आर सेइंग अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स, एग्रीगेट पार्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें माइक्रो लेवल पे भी पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम क्यों हुआ. जैसे कि मैंने आपको एक ऑनियन का एग्जांपल दिया, तो ऑनियन एक सिंगल प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो सिंगल प्रोडक्ट है, उसके वजह उसका प्राइस बढ़ गया, तो अल्टीमेटली इकोनॉमी सारी जगह पे ऑनियन का प्राइसेस बढ़ गया है. ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या ध्यान में रखना चाहिए कि ऑनियन का प्राइस क्यों बढ़ा, तो मुझे वहां पे माइक्रो लेवल पे स्टडी करना चाहिए कि आइदर क्लाइमेटिक सिचुएशन खराब था, या फिर स्टॉक अवेलेबल है लेकिन फार्मर उसको सेल नहीं कर रहे, जानबूझ के छुपा के रख रहे हैं, मतलब वहाँ पे शॉर्टेजेस जानबूझ के दिखा रहे हैं क्या, वो सब मुझे स्टडी करना आना चाहिए. सो दो वी ऑलवेज से अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करते करते हमें माइक्रो लेवल पे भी स्टडी करना चाहिए कि इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है करके. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन हियर, अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोलिंग इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन. यस, मतलब अगर इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसको कैसे मतलब एम्प्लॉयमेंट पे लेके आना है करके. सो दैट ऑल वी आर स्टडीइंग इनटू द माइक्रो इकोनॉमी. इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. इन्फ्लेशन का मीनिंग ये रहता है कि कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द प्राइस लेवल, डिफ्लेशन का मीनिंग रहता है कंटिन्यूअस फॉल इन द प्राइस लेवल. ओके, तो कंटिन्यूअस इंक्रीज भी अच्छा सिचुएशन नहीं है, और कंटिन्यूअस फॉल भी अच्छा सिचुएशन नहीं रहता है इकोनॉमी. ओके, तो अगर ये सिचुएशन रहेगा तो उसको कैसे कंट्रोल में लाना है, दैट वी विल गोइंग टू स्टडी इनटू द माइक्रो इकोनॉमी. नेशनल इनकम का स्टडी करता है, यस ये हम लोगों ने पढ़ा है. दे स्टडी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बताओ मुझे. तुम्हें क्या लगता है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी कहा जाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कहा जाता है, दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा. अच्छा मुझे बताओ कि ग्रोथ अच्छा है या डेवलपमेंट अच्छा रहेगा. डेवलपमेंट अच्छा रहेगा, लेकिन इकोनॉमी में फिर ग्रोथ क्या रहेगा और डेवलपमेंट क्या रहेगा. ग्रोथ मतलब इनकम, हाँ, और डेवलपमेंट मतलब, हाँ देखो ये एकदम अच्छे से बराबर बताया उसने. चेंजेस, ये दूसरा चेंजेस तो है, लेकिन मैंने यहाँ पे डिफरेंस पूछा, तो ग्रोथ मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन इनकम, कंट्री का इनकम बढ़ रहा है, हाँ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, लेकिन वो बढ़ा हुआ इनकम, जो इंक्रीज हुआ इनकम है, अगर वो गवर्नमेंट लोगों के ऊपर खर्च ही नहीं कर रहा है, तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का एजुकेशन, लोगों का हेल्थ वहां पे इम्प्रूव होगा क्या, नहीं होगा. तो मेन क्या होता है कि भले कंट्री के पास पैसा है, लेकिन वो पैसा उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. जैसे देखो घर पे भी एक रहता है, घर पे कैसे रहता है कि मतलब अगर अपने पापा बहुत कंजूस रहेंगे, सैलरी बहुत अच्छा कमाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जो जो एजुकेशन ले रहे हैं वो भी सस्ते वाला है, ऐसा हम लोग कहेंगे, ठीक है. और दूसरी बात, मतलब पापा ने बस नहीं एजुकेशन उसको देना नहीं है करके, जैसे कॉमर्स वगैरह कर लो, दैट विल बी सफिशिएंट, कोई तुम लोग को डॉक्टरी वगैरह करने की जरूरत नहीं, कोई साइंस वगैरह लेके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं. अगर वो कहेंगे तो उसका कुछ फायदा रहेगा क्या उस पर्टिकुलर फैमिली के लिए, देयर विल नॉट बी मच बेनिफिट. दूसरी बात कह सकते हैं कि तुम्हारे पास अफोर्डेबिलिटी है एक बंगलो खरीदने की, लेकिन फिर भी कंजूस हो करके तुम लोग एक 1 आवर के रूम में रह रहे हो, तो ये अच्छा है क्या, नहीं. अगर अफोर्डेबिलिटी है, तुम्हारा सिचुएशन वहां पे अच्छा है, तुम लोग अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर रह सकते हो, तो वो यूज करना चाहिए. ओके, सो इकोनॉमी के लिए भी सेम एप्लीकेबल है. कंट्री के पास पैसा आ रहा है, लेकिन रोडवेज ठीक से नहीं है, रेलवे ठीक से नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर हॉस्पिटल कॉलेजेस अवेलेबल नहीं है, तो उसका मीनिंग नहीं है. ओके, so therefore growth and development, this both concepts we can understand with the help of macroeconomics. Then the next one here, helpful in understanding macroeconomic paradoxes. Okay, paradoxes, it means what we can say कि कौन सा सिचुएशन इकोनॉमी के लिए अच्छा है, कौन सा सिचुएशन इकोनॉमी के लिए खराब है, that we will be able to understand with the help of macroeconomics. Then nature of material welfare. material welfare मतलब यहाँ पे हम लोग एक बात कर सकते हैं, it can be related to your infrastructure or it can be related to your social welfare. social welfare मतलब क्या कि जैसे कि पीएफ कितना कट होता है, पेंशन अमाउंट लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है करके,
अगर तुम लोग अनएम्प्लॉयड में कंसिडर होते हैं तो तुम्हारे लिए कोई बेनिफिट है क्या? जैसे कि रिजर्व कैटेगरी के लिए चलो स्कॉलरशिप स्कीम है, लेकिन जो ओपन कैटेगरी में है लेकिन फिर भी वो लोग इतना अमीर नहीं है, तो उनके लिए स्कॉलरशिप भी रखना चाहिए। Are you getting me? तो ये सब आता है आपका सोशल वेलफेयर एंड मटेरियल वेलफेयर में। देन द इकोनॉमिक प्लानिंग, यस, व्हाट आर ऑल द इकोनॉमिक प्लानिंग वी हैव टू डू, दैट विल ऑल डिपेंड अपॉन कि इकोनॉमिक का सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लानिंग करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट वी कैन से इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देखिए तुम लोगों को कौन सा कॉन्सेप्ट ध्यान में आता है। तब तक यहाँ पे ऑनलाइन पे who will take the screenshot of attendance? Who is this here? Aisha, can you take the screenshot of attendance? Aisha is there? Yes. Yes, Aisha. किसको बोलूं? Okay, Aisha has written yes. Okay. Okay, Aisha, screenshot लेके रखो. So now we are having only 2 minutes. उसके बीच में मैं तुम लोग को थोड़े बहुत क्वेश्चन करती हूँ, देखती हूँ तुम लोगों को वो आता है या नहीं. Yes, tell me, yes, student. When I am studying, when I am talking about the microeconomics, MACRO, तो माइक्रोइकोनॉमिक्स में मैं इंडिविजुअल पार्ट को स्टडी करूंगी या एग्रीगेट पार्ट को? यस, और यहाँ पे ऑनलाइन स्टूडेंट यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स। हाँ, वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट एग्रीगेट। आई गॉट दिस आंसर फ्रॉम द क्लास। ओके, नेक्स्ट है, देखिए दिलशाद ने इंडिविजुअल लिखा। दिलशाद, इट्स नॉट अ माइक्रो इकोनॉमी, इट्स अ माइक्रो, MACRO। ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट मुझे बताओ कि जो जीडीपी रहेगा, जीडीपी बेसिकली क्या इंडिकेट करेगा? ग्रोथ रेट को इंडिकेट करता है या फिर वो ग्रोथ रेट या नेशनल इनकम दोनों को इंडिकेट करेगा? यस, दोनों को इंडिकेट करता है। दिलशाद, वो एक्चुअली दोनों को इंडिकेट करेगा। हाँ, बोथ, यस, वेरी गुड। मतलब वो ग्रोथ रेट भी बताता है और नेशनल इनकम भी बताता है। व्हेन आई एम सेइंग अबाउट द इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? इधर कंटिन्यूस इंक्रीज इन द प्राइस और डिक्रीज इन द प्राइस? increase in the price. Okay, very good. Inflation matlab continuous increase in the price level. Okay, when we are talking about the unemployment, माइक्रोइकोनॉमिक्स में अनएम्प्लॉयड का जस्ट कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा या उसके बारे में डिटेल आपको बताया जाएगा? डिटेल बताया जाएगा। सो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब किसी एक इंडिविजुअल का अनएम्प्लॉयमेंट या पूरे इकोनॉमी का अनएम्प्लॉयमेंट? पूरे इकोनॉमी का अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ये कोई ह्यूमंस का ही रहेगा या सारे मटेरियल्स का रहेगा? अनएम्प्लॉयमेंट मतलब सारे मटेरियल्स, हाँ, ऑल का है, वेरी गुड, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब सारे मटेरियल्स के बारे में। अभी आप लोग बोले कि मटेरियल्स का क्या अनएम्प्लॉयमेंट? जैसे कि अगर कंट्री में रोड है, रोडवेज अवेलेबल है, तो रोडवेज को भी हम लोग को यूज करना चाहिए ना। अगर हम लोग इसको यूज नहीं कर रहे मतलब वो अनएम्प्लॉयड है। ओके, आर यू गेटिंग मी? अगर कंट्री के पास लैंड है, लैंड पे वहां पे हम लोग कल्टीवेशन कर सकते हैं, लेकिन वहां पे हम लोग कल्टीवेट कर रहे, रिसोर्सेज अवेलेबल है, हम लोग यूज नहीं कर रहे, मतलब क्या है?